Hello, dear children. Good afternoon. Welcome to English Kingdom. This is your teacher Deepak Juneja speaking. And as you can see on the screen, today we are going to begin the fourth lesson of your book Flamingo. The name of the lesson is The Red Trip. This lesson is written by Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf was a Swedish writer. So before we begin the lesson, let's go to the introduction of Selma Lagerlöf. As you can see here in the picture as well, Selma Lagerlöf, she was born on 20th of November 1858, and she was born in Sweden, died at the age of 81. And as far as her occupation is concerned, she was a very good writer. She belongs to Sweden, and she has won the Nobel Prize in Literature in 1909. And you can see her younger picture also, her picture at the young age, you can see there on the screen. And she belonged to Sweden. I'm going to take you to the map of the Sweden also. You can see the map of Sweden here. So this is the map of Sweden. It's a European country actually it is. And you can see Finland is also there, Norway is also there. This is Sweden. And it is the largest populated country of Europe. And here you can see the origin of Russia also here. So this is all about the country. Now let's go back to the lesson. This is the title of the lesson is The Red Trip. What is red trap? Actually, the red trap is the same which you are thinking of. Red trap means the particular instrument or the particular cage which is used to catch the rats. जो रेट्स को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है उसे ही हम रेड ट्रैप कहते थे. पहले के ज़माने में इसका यूज़ होता था. प्रीवियसली इट वाज बीइंग यूज्ड बाय पीपल, बट नाउअडेज इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड. पीपल आर डायरेक्टली यूजिंग rat poisons for them. So obviously that is very cruel. In place of those rat poisons we should use rat traps. But this has nothing to do with the lesson's theme. ये जो रेड ट्रैप में आप रेट को देख रहे हैं, चूहे को देख रहे हैं, दरअसल इसका एक फिलॉसफिकल एस्पेक्ट है इस पूरे लेसन की थीम का. इसमें पूरे लेसन में जो हमारी लाइफ है उस लाइफ को रेड ट्रैप माना गया है. और यहाँ इस रेड ट्रैप के अंदर जो चूहा बैठा हुआ है उस चूहे की जगह हम इंसानों को माना गया है कि वी ऑल आर स्ट्रक इन अ रेड ट्रैप. हम सभी भी एक चूहे के जाल में फंसे हुए हैं. As a rat is attracted by the crumbs of grain and some other things, जैसे कि pieces of bread, जैसे चूहा जो होता है रोटी के टुकड़े या कुछ अन्य खाने की चीज़ों से अट्रैक्ट होके इस चूहेदानी में फंस जाता है. In the same way we human beings are also trapped in the rat trap. उसी प्रकार से हम ह्यूमन बीइंग्स भी जो है रेड ट्रैप में फंस जाते हैं. किस लिए? मनी के लिए, फेम के लिए, लोभ, मोह, माया, इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं. तो इसका लेसन का एक फिलॉसफिकल एस्पेक्ट है और इस पूरे लेसन में इसी फिलॉसफिकल एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश की गई है. यहाँ रेड ट्रैप से जो ना तो रेड से मतलब है और ना ही सरफेस लेवल पे रेड ट्रैप से मतलब है. रेड का मतलब ह्यूमन बीइंग्स और रेड ट्रैप का मतलब लाइफ से बिलोंग करता है. तो लेट्स गो बैक टू द लेसन की तरफ चलते हैं. दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर सेल्मा लागरलॉफ, born in 1858 and died at the age of 81, as we have already read. She was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. ये वाला जो थीम है, आई वुड से कि दिस थीम इज़ नॉट न्यू टू यू. ये थीम आपके लिए कुछ नया नहीं है. अगर आप 10th क्लास में कुछ लेसन्स की तरफ जाएं तो ये कुछ ऐसे लेसन्स हैं जहाँ पर इस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है. ये थीम वहाँ पर देखा जाता है कि एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग, कि पीपल आर नॉट बैड, लोग बुरे नहीं होते हैं. दे बिकम बैड ओनली बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड देयर सिचुएशंस. वो बुरे क्यों बन जाते हैं? अपनी परिस्थितियों के कारण. सो यहाँ पर हर आदमी में एक गुडनेस होती है. व्हाट डज द राइटर वांट टू से? हर आदमी में एक गुडनेस होती है. उस गुडनेस को हम अंडरस्टैंडिंग और लव से अराउज कर सकते हैं, यानी जगा सकते हैं. दिस इज द थीम ऑफ द लेसन. और ऑब्वियसली रेड ट्रैप का तो जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है वो कनेक्टेड है ही
लेकिन उसके साथ में ये दूसरी चीज भी इसमें कनेक्टेड है. दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन. इस स्टोरी की जो बैकग्राउंड है वो स्वीडन की माइंस हैं. माइंस मीन्स खाने. रिच इन आयरन और कहते हैं रॉ आयरन जो होता है, जिसमें रॉ कंपोनेंट जो होता है आयरन का, उसको और बोलते हैं. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल. फेरी टेल का मतलब जैसे परियों की कहानी होती है, वैसे इस कहानी को भी बताया गया है. So let's go to the text now. Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire. This was the profession of that person. He went here and there for selling small red traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. तो वो red traps खुद बनाता था from the material. और material कहाँ से मिलता था उसको उन red traps को बनाने के लिए? बैगिंग करके. बैगिंग मतलब भीख मांगता था स्टोर्स में या फिर बड़े बड़े फार्म्स में. उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए भीख मांगता था और फिर उससे रेड ट्रैप्स बनाया करता था. बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल बिकॉज हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, द बिजनेस ऑफ सेलिंग रेड ट्रैप्स. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. ये जो लिखा है टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब होता है टू लिव समहाउ, यानी जैसे तैसे जिंदा रहना. तो उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, उस बिजनेस से कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता था. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू का मतलब होता है डिपेंड ऑन. इसलिए उसे दो चीज़ें करनी पड़ती थी. कौन कौन सी? एक तो बैगिंग करनी पड़ती थी, भीख मांगनी पड़ती थी. बैगिंग किसके लिए? रेड ट्रैप्स के लिए. और पैटी थीवरी, पैटी मीन्स स्मॉल, थीवरी का मतलब चोरियां करनी पड़ती थी. सो दिस वाज द सोर्स ऑफ हिज लाइवलीहुड. ये उसके लाइवलीहुड का सोर्स था. इन दिस वे ही अर्न हिज लाइवलीहुड. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स. इन रैग्स मीन्स टॉर्न फ्रॉम हियर एंड देयर, फटे हुए थे उसके कपड़े. हिज चीक्स वर संकन. उसके जो गाल थे वो संक मीन्स मुरझाए हुए थे या दबे हुए थे. दैट शोज दैट ही वॉज वेरी वीक. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज. और भूख उसकी आंखों में चमकती थी. सो अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन को देखें, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, तो ये यहाँ से आपको स्टीफन स्पेंडर की वो पोएम याद आएगी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, जहाँ पर एक पेपर सीमिंग बॉय के बारे में बात की गई थी और उसकी आंखों के लिए कहा गया था ही हैज़ रैट साइज, कि उसकी आंखें रैट की जैसी हैं. तो रैट साइज आर एक्चुअली द सिंबल ऑफ हंगर. तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि what did the red trap seller do to earn his livelihood? So you have to write all these things, that he sold small red traps of wire. His business was not good, so he had to do begging as well as petty thievery also to keep his body and soul together. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. ये जो वर्ड यूज़ किया गया है वैगाबॉन्ड, ये वैगाबॉन्ड जो वर्ड है ये भी इसी रेड ट्रैप सेलर के लिए यूज़ किया गया है. सो वाइल रीडिंग दिस लेसन एंड अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन यू नीड टू बी वेरी अलर्ट कि ये वैगाबॉन्ड भी वही है जो रेड ट्रैप सेलर है. दीज आर नॉट टू डिफरेंट पर्सन्स. तो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि ज़िंदगी कितनी सैड और मोनोटोनस मीन्स बोरिंग हो सकती है ऐसे वैगाबॉन्ड के लिए. वैगाबॉन्ड कहते हैं आवारा घूमने वाले व्यक्ति के लिए. हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, जो सड़क के सारे प्लॉड मीन्स वॉक करता है, वॉक हैवीली, भारी भारी कदमों से चलता रहता है. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन मीन्स लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स, अपने थॉट्स में खोया रहता है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट. Man had fallen into a line of thought means a thought came to his mind. एक thought उसके दिमाग में आया, which really seemed to him entertaining. This thought was very entertaining to him. अब ये thought क्या था? He had naturally been thinking of his rat traps. वो अपने rat traps के बारे में सोच रहा था चलते चलते एक दिन ऐसे ही. When suddenly he was struck by the idea. Suddenly an idea came to his mind that the whole world about him, that the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. So what was this idea which came to his mind? कि ये पूरी की पूरी दुनिया जो है, जिसमें ये सारी ज़मीन भी शामिल है, समुद्र भी शामिल है, सिटीज़ भी शामिल हैं, विलेजेस भी शामिल हैं, ये कुछ भी नहीं है बट
ये सभी के सभी एक बड़ा रैट ट्रैप है। एक बड़ा सा भगवान ने हमारे लिए रैट ट्रैप बनाया हुआ है और हम सभी रैट्स उसमें फंसे हुए हैं। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस बट टू सेट बेट्स फॉर पीपल। अकॉर्डिंग टू हिम, जब दिमाग में उसके विचार आया रैट ट्रैप सेलर के कि ये इसका कोई पर्पस है ही नहीं इस पूरे वर्ल्ड का, एक ही पर्पस है कि लोगों को फंसाना। टू सेट बेट्स, बेट्स का मतलब उनके लिए लालच की चीजें उनके लिए सेट करना। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, ये इट रेफर करता है वर्ल्ड को कि ये वर्ल्ड लोगों को फंसाने के लिए, रिचेस मीन्स पैसा, जॉयज मीन्स खुशी, शेल्टर मीन्स शरण मकान, फूड खाना, हीट गर्मी, गर्मी उसके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि वो जो बर्फीले एरियाज में निवास करता है, क्लोथिंग कपड़े, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क। उसी प्रकार से जिस प्रकार से रैट ट्रैप चीज और पॉर्क ऑफर करता है, उसी प्रकार से ये जो ह्यूमन लाइफ है यानी ये वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड लोगों के लिए पैसा, खुशी, शेल्टर, फूड ये सब ऑफर करता है और हम लोग उसमें फंस जाते हैं। As soon as anyone let himself be tempted to touch the bat, it closed in on him. जैसे ही कोई अट्रैक्ट होके इन बैट्स को टच करता है यानी इन लालच की चीज़ों को अट्रैक्ट होकर टच करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और ये उसके ऊपर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सबकी ज़िंदगी ऐसे ही रेड ट्रैप में फंस कर रह जाती है। केम टू एन एंड का मतलब डेथ नहीं हो जाती है, केम टू एन एंड का मतलब रेड ट्रैप में फंस कर रह जाती है। So from this paragraph, the question appears in the examination: how did the rat trap seller compare the rat traps with the world? एक तो ये क्वेश्चन, या फिर इसी को क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे भी दिया जा सकता है कि what thought came to the rat trap seller's mind when one day he was plodding along the road? How did that idea entertain him? The world had of course never been very kind to him. ये दुनिया उसके लिए अच्छी नहीं रही थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय। अनवांटेड, ये वांटेड नहीं, अनवांटेड। अनवांटेड का मतलब होता है अनयूजुअल जॉय, टू थिंक ऑफ इल ऑफ इट इन दिस वे। तो उसे दुनिया के बारे में ये सोचकर बहुत मजा आया, बहुत अच्छा उसको आनंद मिला। बिकॉज द वर्ल्ड हैड नॉट बीन काइंड टू हिम, क्योंकि ये दुनिया उसके लिए काइंड नहीं रही, दुनिया ने उसको कोई काइंडनेस नहीं शो की है। तो इन दिस वे ही थॉट कि वो ऐसा सोच सोच के दुनिया के बारे में लोगों से बदला ले रहा है। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। चेरिस्ड मीन्स फेवरेट, ये उसका फेवरेट पास टाइम बन गया। जब भी वो फ्री होता तो वो ये सोचता दुनिया के बारे में कि देखो ये दुनिया कुछ नहीं है, रेड ट्रैप है, ये सारे चूहे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये सारे चूहे फेम के पीछे भाग रहे हैं, खुशी के पीछे भाग रहे हैं, सब फंसे हुए हैं। तो दिस आइडिया गेव हिम प्लेजर। ये आइडिया जो था ये उसको बड़ा अच्छा लगता, उसको बड़ा मज़ा आता उससे, क्योंकि दुनिया ने उसके लिए अच्छा नहीं किया था। तो इन दैट वे ही थॉट कि वो दुनिया से बदला ले रहा था। ड्यूरिंग मैनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स, ड्रीयरी मीन्स टायरसम, थका देने वाली, प्लॉडिंग्स मीन्स वॉकिंग। तो ऐसी बहुत सारी थका देने वाली जब वॉकिंग्स वो करता, तो उस समय जब इन चीज़ों के बारे में सोचता कि वर्ल्ड एक रेड ट्रैप है, वो उसका दिमाग पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाता। To think of people he knew who would let themselves be caught in the dangerous snare. Snare कहते हैं पिंजरा। तो रास्ते में चलते चलते वो उन लोगों के बारे में सोचता जो इस पिंजरे के अंदर फंस चुके हैं, रेड ट्रैप के अंदर। who and of others, और दूसरों के बारे में who are still circling around the bed, जो अभी भी इस रेड ट्रैप के अंदर फंसने को बड़ा बेताब हैं। ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें वो रास्ते में चलते हुए सोचता। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेजिंग अलॉन्ग द रोड। ट्रेजिंग का मतलब भी वॉकिंग होता है, वॉकिंग और ये प्लॉडिंग, ये सभी एक जैसे ही वर्ड्स हैं, थोड़ा चलने की स्टाइल अलग अलग हो सकती है। ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज। उसे एक छोटा सा ग्रे कॉटेज दिखाई दिया। कॉटेज हट को कहते हैं, झोंपड़ी को। बाय द रोड साइड यानी रोड साइड के एक तरफ। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। शेल्टर यानी एक रात के लिए शरण मांगी उसने। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे किसी ने मना भी नहीं किया। इंस्टीड ऑफ द साउर फेसेस विच ऑर्डिनरली मैट हिम, द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस। इंस्टीड ऑफ द साउर फेसेस मीन्स बैड फेसेस, एंग्री फेसेस। तो जब भी वो कहीं शरण मांगने जाता, अधिकतर लोग उसकी तरफ नफरत से देखते, लेकिन आज ऐसा नहीं था। जिसने दरवाज़ा उसके लिए खोला था कॉटेज में, ही वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था, वाइफ और बच्चे नहीं थे। एंड ही ऑल्सो वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव हिम,
उसे भी उसे रिसीव करके बहुत खुशी हुई, बिकॉज एटलीस्ट ही गॉट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, क्योंकि उसे भी कोई अपने उसके अकेलेपन में कोई बातचीत करने के लिए मिला। अब ये ही कौन है? ये ही कॉटेज का मालिक है, ये ग्रे कॉटेज का, इस कॉटेज का मालिक है जो उसने उसका वेलकम किया, उसे बहुत उसकी खुशी हुई। इमीजिएटली ही पुट द पॉरीज पॉट ऑन द फायर। पॉरीज कहते हैं दलिया। उसी समय उसने दलिया बनाने के लिए रख दिया फायर के ऊपर, एंड गेव हिम सपर, और उसे खाना खिलाया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, और टबैको रोल से उसके लिए बड़ा सा पीस काटा। इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ऑन, स्मोकिंग की थोड़ी देर के लिए। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और फिर उन्होंने कार्ड्स निकाले और प्लेड मिज़ोलिस या म्यूलिस, इसको मिज़ोलिस भी बोलते हैं, म्यूलिस भी बोलते हैं। ये स्वीडिश कार्ड गेम है, ये स्वीडन का एक कार्ड गेम है। विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और बेड टाइम तक उसके साथ में खूब कार्ड्स खेले। ये गेस्ट रेफर करता है रेड ट्रैप सेलर को, और ही रेफर करता है इस कॉटेज के मालिक को। The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. ये जो बूढ़ा आदमी था, this old man was the owner of the cottage, ये कॉटेज का मालिक था। वो बहुत जेनरस मीन्स काइंड था, विद हिज कॉन्फिडेंसेस, अपने कॉन्फिडेंस में भी, पॉरिज में भी, एंड टबाको में भी। यानी जिस तरह से वो पॉरिज और टबाको में जेनरस था, उसी प्रकार से वो अपने सीक्रेट शेयर करने के लिए भी बड़ा ही जेनरस था। द गेस्ट वाज, क्या क्या सीक्रेट्स उसने शेयर किए? द गेस्ट वाज इन्फॉर्म, गेस्ट कौन है? रेड ट्रैप सेलर। He was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. उसने, जो मालिक था, उसने अपने गेस्ट को यानी रेड ट्रैप सेलर को इन्फॉर्म किया कि जब उसकी प्रॉस्पेरिटी के डेज थे, यानी जब वो खूब उसके पास में अच्छा पैसा था, उस समय वो एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर रैम्सजो आयरन वर्क्स में, रैम्सजो आयरन वर्क्स में क्रॉफ्टर एक टेक्निकल वर्क होता है, कुम्हार जैसा वर्क होता है, लोहे को गलाने जैसा काम करते हैं ये। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वो रैम्सजो आयरन वर्क्स में काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब चूंकि वो ये काम नहीं कर सकता, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो उसकी लाइवलीहुड का सोर्स है जो है अब वो काउ है। तो ये सब कौन बता रहा है? ये वो क्रॉफ्टर, वो उस कॉटेज का मालिक जो कि पुराने समय में, अपने किसी समय में क्रॉफ्टर था रैम्सजो आयरन वर्क्स में। और उसका कहना है कि ही हैज़ लेफ्ट द वर्क नाउ, अब उसने काम छोड़ दिया है, बिकॉज हिज फिजिकल कंडीशन इज नॉट ओके, और अभी वो एक गाय पर आश्रित है। येस, दैट बॉजी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये बॉजी वर्ड जो है काउ के लिए रेफर किया गया। द काउ इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। सारे सीक्रेट्स अपने शेयर करने शुरू किए उस ओल्ड मैन ने, उस क्रॉफ्टर ने रेड ट्रैप सेलर को, कि उसकी गाय बहुत अच्छा दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड द 30 kroner इन पेमेंट। Kroner is the name of the currency of Sweden. I can show you some pictures of kroners here. Here you can see the pictures of kroners. These all are the kroner images. You can see 10 kroner, 2000 kroner. So this is the thing. The stranger must have seemed incredulous. This stranger word जो है ये रेफर कर रहा है यहाँ पे रेड ट्रैप सेलर को। तो यहाँ पर उसने क्या सोचा कि हो सकता है कि अजनबी को उसकी बातों पर विश्वास ना हो। इनक्रेड्यूलस, ये इनक्रेड्यूलस जो है इनक्रेडिबल से बना हुआ वर्ड है। इनक्रेड्यूलस मीन्स हो सकता है उसको विश्वास ना हो। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, इसलिए ओल्ड मैन उठा, यानी वो क्रॉफ्टर उठा, खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच मीन्स पर्स, विच हंग ऑन ए नेल मीन्स कील इन द वेरी विंडो फ्रेम के कील के अंदर लटका हुआ था वो पर्स, वो नीचे लेके आए। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 kroner बिल्स कहते हैं नोट्स को, क्रॉनर आप समझ ही गए, रिंकल्ड का मतलब मुड़े तुड़े। These he held up before the eyes of his guest, ये उसने अपने नोट्स खोल के अपने गेस्ट को यानी रेड ट्रैप सेलर को दिखाए। नोइंगली, नोडिंग का मतलब सिर हिलाते हुए, जानबूझकर उसने सिर हिलाते हुए उसको दिखाया। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर वापस उन्हें अपने पाउच के अंदर, पर्स के अंदर ठूंस दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों आदमी उठे, दोनों आदमी मीन्स क्रॉफ्टर एंड द रेड ट्रैप सेलर,
बहुत खुश थे। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर को जल्दी थी अपनी काउ को गाय का दूध निकालने की। एंड द ओल्डर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुडंट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। एंड द क्रॉफ्टर, दिस रेड ट्रैप सेलर आल्सो थॉट कि क्रॉफ्टर वाज अवे आउट ऑफ द हाउस, दैट्स व्हाई शुड ही स्टे देयर, उसे वहां क्यों रुकना चाहिए, इसलिए वो भी वहां से उठा और चला गया। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, एक ही समय पर कॉटेज उन्होंने छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड thereupon each went his own way. So the red trap seller and the crofter both were out of the house of the crofter. दोनों ही क्रॉफ्टर के घर से बाहर निकल गए। क्रॉफ्टर गया अपना गाय का दूध निकालने के लिए, एंड रेड ट्रैप सेलर बिकॉज इट वाज द डे टाइम सो ही हैड नो वेयर टू गो, अगेन हिज जर्नी वाज गोइंग टू स्टार्ट। लेकिन क्या वास्तव में रेड ट्रैप सेलर आगे गया? क्या हुआ? हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद में, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। अब देखिए यहाँ पर ये रेड ट्रैप पेडलर वर्ड यूज किया गया है। पहला वर्ड था रेड ट्रैप सेलर, दूसरा वर्ड था वेगाबॉन्ड, और तीसरा वर्ड यूज किया गया है रेड ट्रैप पेडलर। ये तीनों के तीनों एक ही व्यक्ति के लिए, रेड ट्रैप सेलर के लिए यूज किए गए। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वापस आ गया वो आधे घंटे बाद में, वापस आ गया उसी क्रॉफ्टर के घर में। उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश द पेन, पेन का मतलब होता है विंडो की जो पेन होती है, कांच, उसको तोड़ा। टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर डाला, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर्स, पर्स निकाल लिया, 30 क्रोनर्स निकाल। ही टुक द मनी, पैसा लिया, थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, अपने पॉकेट में उसको डाला। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन हिज प्लेस एंड वेंट अवे। सो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली हियर? वो रेड ट्रैप सेलर पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा था ना, कि पूरी दुनिया पैसे के पीछे फंस जाती है रेड ट्रैप्स में। अब वो खुद फंस गया। उसके सामने 30 क्रोनर्स उसको दिखाए गए, और जैसे ही 30 क्रोनर्स देखे उसने, वो लालच में आ गया, और लालच में आके उसने उनको 30 क्रोनर्स को चुरा लिया, और अब वो खुद रेड ट्रैप में था। जबकि वो दूसरों के लिए सोच रहा था कि सब पागल हैं, ये दुनिया कुछ नहीं है, एक रेड ट्रैप है। इन द सेम वे इट हैपेंड। Further, what happened? As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He was very happy. How smart work I had done. क्रॉफ्टर को तो पता भी नहीं चलने दिया अपना। Pleased means happy. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. Immediately his mind became active कि he should not take public highway, कि उसे public highway पे नहीं जाना है। Because if he went to public highway, police might catch him. कि अगर वो पब्लिक हाईवे पे गया, पुलिस उसे पकड़ लेगी। ही मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स, ही शुड टेक द रोड ऑफ द वुड्स, उसने वुड्स का रास्ता लेना चाहिए। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, पहले कुछ घंटों में उसे कोई परेशानी नहीं हो, वुड्स में चला गया। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उसके लिए बड़ी मुश्किल होती गई। वाई? बिकॉज इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था। which he had gotten into, जिसमें वो घुस गया था। He tried to be sure to walk in a definite direction. उसने बहुत कोशिश की कि वो एक ही डायरेक्शन में चले, but the paths twisted back. लेकिन रास्ते वापस मोड़ के वहीं आ रहे थे और वहीं जा रहे थे। He walked and walked without coming to the end of the wood. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, उसे लग रहा वो आगे जा रहा है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो वहीं घूम रहा है। इन द सेम वे दिस इज ट्रू अबाउट लाइफ आल्सो। लाइफ में भी हम क्या करते हैं, हम सोचते रहते हैं हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वी आर रिवॉल्विंग अराउंड आवर डेस्टिनेशन। एंड व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन? आवर डेस्टिनेशन इज गॉड। वी आर फाइनली टू मीट विद गॉड अगेन। तो उसके साथ में भी ऐसा हुआ, और ये जो पूरा का पूरा पाथ है कंफ्यूजिंग, ये एक्चुअल में वो अपने ही उसी रेड ट्रैप में फंस चुका है जिस रेड ट्रैप की बात वो सोच रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड, और उसी समय उसे याद आ गई वो सारी चीजें जो वो सोच रहा था, बातें दुनिया के बारे में, रेड ट्रैप के बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसे लगा उसकी खुद की बारी आ गई। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बैट एंड हैड बीन कॉट। वो खुद लालच में आ गया। बैट क्या थी यहाँ पर बैट थी 30 क्रोनर्स, और फंस गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. पूरा का पूरा जंगल
इसमें इसके ट्रंक्स, इसकी ब्रांचेस, थिकेट्स, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, फॉलन लॉग्स, ये सभी उसके ऊपर एक तरह से उसके सामने इम्पेनेट्रेबल प्रिजन के रूप में काम कर रहे थे। इम्पेनेट्रेबल प्रिजन कहते हैं, ये जो इम्पेनेट्रेबल वर्ड है ये पेनेट्रेट से बना है, पेनेट्रेट से बना पेनेट्रेबल, और पेनेट्रेबल का अपोजिट हुआ इम्पेनेट्रेबल। इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, द प्रिजन विच कैन नॉट बी पियर्स्ड इनटू, यानी ऐसा प्रिजन, ऐसी जेल जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो उसको ऐसा लगा कि ये पूरा का पूरा जंगल, ट्रम्प्स, ब्रांचेस, थिकेट्स, ये सभी उसके लिए इम्पेनेट्रेबल प्रिजन बन चुके हैं जिससे वो कभी भी बच के अब नहीं निकलेगा। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. Descending means coming down. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Gloom means unhappiness. Despair means disappointment. This increased the danger. दिसंबर का महीना था, डार्कनेस, रात यानी पहले से ही शाम होने लग गई थी, अंधेरा होने लग गया था। This increased the danger. Danger of what? The danger of wild animals. वाइल्ड एनिमल्स का डेंजर बढ़ता जा रहा था। फाइनली ही सा नो वे आउट, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के ऊपर नीचे गिर गया। टायर्ड टू डेथ, ही वॉज टू टायर्ड बट ही वॉज नॉट एबल टू गो एनीवेयर, कि वो चल नहीं सकता था। एंड ही वॉज वेटिंग फॉर हिज डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड के ऊपर उसका सिर गिरा, यानी वो गिरा नीचे, उसका सिर जमीन से लगा, ही हर्ड ए साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग साउंड इट वॉज। ये एक हार्ड रेगुलर थम्पिंग साउंड थी। देर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, थप थप की साउंड आ रही थी। देर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, उसे उसी समय समझ में आ गया कि वट दैट साउंड वॉज ऑल अबाउट। ही रेज्ड हिमसेल्फ, थोड़ा बहुत उसके अंदर ताकत आई। ही समन्ड हिज स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को इकट्ठा किया, और उसने क्या इमेजिन किया, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, कि ये जो स्ट्रोक्स सुनाई दे रहे हैं ये हैमर स्ट्रोक्स हैं, हथौड़े के स्ट्रोक्स हैं, किसी आयरन मिल से सुनाई दे रहे हैं। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, ही वॉज वेरी हैप्पी कि लोग आसपास में हैं। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से उठा, स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसी डायरेक्शन में चलने लगे। द Ramsjo Iron Works. Ramsjo Iron Works. This was the name of the factory from where the sound was coming. ये उस Ramsjo Iron Works उसी फैक्ट्री का नाम है जहाँ से साउंड आ रही थी। Which are now closed down. अब वो बंद हो चुकी है। Were not so long ago, लेकिन कुछ साल पहले it was a large plant. आपको याद होगा ये Ramsjo Iron Works वही फैक्ट्री जिसके बारे में क्रॉफ्टर ने भी जिक्र किया था कि वो पहले उसमें एक क्रॉफ्टर के रूप में काम करता था। तो When it was open, जब वे पूरी तरह से खुली थी, it was a large plant. ये एक बड़ा सा प्लांट थी। खुली का मतलब प्रॉस्परस थी, अब इसमें काफ़ी अच्छे से चलती थी। बड़ा सा प्लांट था विद स्मेल्टर। अब ये स्मेल्टर क्या होता है, आई हैव कलेक्टेड सम पिक्चर्स। ये देखिए स्मेल्टर, इनमें लोहे को गलाया जाता है। यू कैन सी दिस पिक्चर आल्सो, उसमें स्मेल्टर भी था। अच्छा, और भी चीज़ों के बारे में लिखा है। रोलिंग मिल, दिस इज़ कॉल्ड रोलिंग मिल। यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये जो मेटल है, इस मेटल को स्ट्रेट किया जा रहा, रोल किया जा रहा ताकि ये स्ट्रेट हो जाए। तो ये रोलिंग मिल हो गया। उसके बाद में फोर्स कहते हैं पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर बड़ी सी भट्टियों में लोहे को गलाने का प्रबंध किया जाता है, अरेंज किया जाता है। ये फोर्स है, ये देखिए ये फोर्स, एक बड़ी सी भट्टी जो होती है, फर्नेस की टाइप की होती है उसको फोर्स कहते हैं। So in the summer time, long lines of heavily loaded barges and scows. ये barges and scows जो हैं, these are the types of boats. ये boats के टाइप हैं। समर के टाइम में लंबी लंबी लाइनें लगती थी, बड़ी बड़ी भारी भारी बोट्स की, स्लिट डाउन द कैनल, जो कि कैनल से निकल कर आया करती थी, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और बड़ी सी इनलैंड लेक में जाया करती थी। इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम द कोल डस्ट, और विंटर के समय पर जो सड़कें जो थी वो पूरी की पूरी काली पड़ जाती थी कोल डस्ट के कारण। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि बड़े बड़े चारकोल कोयले के जो क्रेट्स हुआ करते थे, क्रेट्स मीन्स चिमनियों को रेफर करता है, वहाँ से गिरती थी और उसके कारण पूरी सड़कें काली हो जाती थी। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helpers sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in fire to be ready to put on the anvil.
ऐसी ही एक लंबी डार्क इवनिंग्स। तो ये तो तब था जब रैम्सजो आयरन फैक्ट्री जो थी बहुत रिच थी, बहुत प्रॉस्परस थी, बहुत बढ़िया काम चलता था। लेकिन अभी काम इतना बढ़िया नहीं चलता है। ये लॉन्ग डार्क इवनिंग में अभी खाली मास्टर स्मिथ बैठा हुआ है। मास्टर स्मिथ यानी सबसे जो मेन आदमी है, और उसका हेल्पर बैठा हुआ है डार्क फोर्स में नियर द फर्नेस, फर्नेस के पास में, वेटिंग फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन कहते हैं रॉ आयरन, कच्चा आयरन, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि फायर में रखा हुआ है, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। एनविल, एनविल क्या होता है? आई हैव कलेक्टेड दिस पिक्चर ऑफ एनविल आल्सो। ये आपने देखी होंगी, जो लोहे का काम करते हैं वो इसके ऊपर लोहे को रखकर ऊपर हैमर से अटैक करते हैं उसकी शेप को सीधा करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एनविल। सो ये क्या है? ये रैम्सजो आयरन फैक्ट्री का वर्तमान का प्रेजेंट सीन है, और ये था जो था ये रैम्सजो आयरन फैक्ट्री का पास्ट हुआ करता था। अभी प्रेजेंट में ये है, प्रेजेंट में एक मास्टर स्मिथ बैठा हुआ है और उसका हेल्पर बैठा हुआ है। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration, though as was the custom. थोड़ी थोड़ी देर में, every now and then का मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उनमें से एक, यानी मास्टर स्मिथ और हेल्पर, उन दोनों में से कोई एक उठता और एक लॉन्ग आयरन बार से ये जो ग्लोइंग मास था, यानी जहाँ लोहे को गलाया जा रहा था, उसका जो लिक्विड था उस लिक्विड को स्टर करके आता, यानी हिला के आता। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, परस्पिरेशन कहते हैं स्वेट, पसीना, दोनों के दोनों पसीने से भीगे हुए थे। दो एज वाज द कस्टम, जैसे कि ये उनकी कस्टम हो, बार बार उठना, फिर ये दोनों में से एक जाएगा फिर उठ के आएगा। ये परस्पिरेशन से क्यों भीगे हुए थे, पसीने से? क्योंकि वो फर्नेस के पास बैठे हुए थे, भट्टी के पास बैठे हुए थे। ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। उसने एक लंबी शर्ट पहनी हुई थी और वुडन शूज पहने हुए थे। चेहरा भी थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट्स लगे हुए होंगे जगह जगह, यू कैन इमेजिन द पिक्चर एज वेल। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स। उस पूरे फोर्स में अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आ रही थी। कैसे? द बिग बैलोज ग्रोन्ड। ये बैलोज क्या होते हैं? आपने कहीं आरसीसी होते हुए देखी होगी। आरसीसी की मशीन होती है जिसमें बड़े से बेलनाकार जो वो ड्रम्स चलते हैं, घूमते हैं, जिसमें मसाले को जो है ग्राइंड किया जाता है, उसको बैलोज कहते हैं। तो यहाँ बड़े बड़े बैलोज की ग्रोनिंग मीन्स क्राइंग की वॉइस आ रही थी, यानी उनके चलने की आवाज़ें आ रही थी। बर्निंग कॉल क्रैक्ड, जलता हुआ जो कोयला था उसकी क्रैकिंग की आवाज़ भी आ रही थी। द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द मा ऑफ द फर्नेस विद ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। ये फायर बॉय यही लड़का है जो इसका हेल्पर है। ये लगातार चारकोल को इधर से उधर मूव कर रहा था विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। क्लैटर कहते हैं नॉइस, बड़ी आवाज़ के साथ में। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर से वाटरफॉल की भी आवाज़ आ रही थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और नॉर्थ से आने वाली हवा भी बहुत तेज चल रही थी। रेन भी हो रही थी, ब्रिक टाइल्ड रूफ, और रेन के गिरने की भी आवाज़ें आ रही थी। सो देयर वर मैनी साउंड्स। सो हमें यहाँ तैयार रहना चाहिए। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड्स ऑफ साउंड्स वर बीइंग हर्ड इन द रैम्सजो आयरन फैक्ट्री। रैम्सजो आयरन फैक्ट्री में कौन कौन सी आवाज़ें सुनी जा रही थी? तो ये दिस इज द आंसर। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the force. तो इस नॉइस के कारण ही शायद ब्लैकस्मिथ को, यानी मास्टर स्मिथ को ये दिखाई नहीं दिया कि एक आदमी गेट खोलकर अंदर घुस के आ गया। ये आदमी कौन था? Who was this man? This man was the red trap seller. Until he stood close up to the furnace. और तब तक वो आदमी दिखाई नहीं दिया जब तक कि वो फर्नेस के पास में नहीं आ गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of light which escaped through the sooty panes. ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी मास्टर स्मिथ के लिए। ऐसे बहुत सारे पुअर वेगाबॉन्ड्स, आवारा घूमने वाले लोग आ जाया करते थे शेल्टर मांगने के लिए रात में, क्योंकि ये जो लाइट का जो ग्लो था फोर्स का, जो कि सूटी पेन्स क्या होते हैं? पेन, विंडो पेन तो आप समझते ही हैं। सूटी क्या होते हैं? सूटी जब उनके ऊपर, पेन्स के ऊपर कुछ लिक्विड या कालिख जम जाती है, उसको बोलते हैं सूटी पेन्स। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं मास्टर स्मिथ के लिए। इट वाज नॉट अनयूजुअल थिंग, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, कि ऐसे लोग आते हैं, शरण मांगते हैं, फायर के पास में बैठ के अपने आप को सर्दी में थोड़ा सा गर्म करते हैं। द ब्लैकस्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। तो उस ब्लैकस्मिथ ने, दोनों ने उनकी तरफ ग्लैंस देखा कैजुअली, उसकी रेड ट्रैप सेलर की तरफ ऐसे ही देखा कैजुअली, विदाउट स्पेशल लुक।
एंड इनडिफरेंटली बिना किसी रिएक्शन की तरफ देखा। एट द इंट्रूडर, ये इंट्रूडर वर्ड यूज किया गया है रेड ट्रैप सेलर के लिए, जो अंदर घुस के आया है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वो वैसे ही दिख रहा था जैसे उस तरह के जो वेगाबॉन्ड्स होते हैं वो दिखते हैं। विद ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, डर्टी, गंदा, रेगेड, फटे हुए कपड़े पहने, विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स का एक बंच डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो कि उसके चेस्ट पे लटक रहा है। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent. The red trap seller asked for permission to stay और master blacksmith ने haughty consent दी। haughty consent means the consent without any desire, ऐसी consent जो बिना किसी इच्छा की दी जाती है। without honoring him with a single word, उसकी तरफ बिना देखे ही उसने उसे परमिशन दी। The tramp did not say anything. Now look at this word, ये एक नया वर्ड यूज किया गया है, tramp। ये ट्रैम्प और ये इंट्रूडर, ये सब रेड ट्रैप सेलर के लिए यूज की गई। इंट्रूडर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रैम्प का जरूर ध्यान रखें। तो कितने वर्ड्स हो गए? रेड ट्रैप सेलर हो गया, रेड ट्रैप पैडलर हो गया, और इसके अलावा ट्रैम्प हो गया, वैगाबॉन्ड हो गया। ये सभी एग्जाम में इनमें से किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, सो यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ दिस वन। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। उसको भी बुरा नहीं लगा कि उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि वो किसी से बातचीत करने तो आया नहीं था वहाँ पे, वो तो सिर्फ अपने आप को ठंड से बचाने आया था, सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द रैम्सजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। तो रैम्सजो आयरन मिल उस समय, इस समय यानी पहले तो प्रॉस्परस हुआ करती थी, लेकिन अभी इतनी प्रॉस्परस नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर उसको मैनेज करता है। एंड ही हैज़ ए गुड एम्बिशन, उसकी एक एम्बिशन है कि वो मार्केट में अच्छा आयरन एक्सपोर्ट करना चाहता है। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत एनर्जेटिक था, दिन रात सुपरविजन के लिए आया करता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्स ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और वो इंस्पेक्शन करने आ गया। नेचुरली अब ये जो है आयरन मास्टर है, ये आयरन मास्टर इस पूरी फैक्ट्री का, रैम्सजो आयरन मास्टर फैक्ट्री का मालिक है। और जो हमने ऊपर बात की है, ये ब्लैक स्मिथ्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ब्लैक स्मिथ्स और आयरन मास्टर में कंफ्यूज नहीं होना। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही saw was the tall ragamuffin. Ragamuffin means heap of rags, यानी जो फटे पुराने कपड़ों का ढेर। कौन था ये भी इसके लिए यूज किया गया है, रेड ट्रैप सेलर के लिए। Who had eased his way, तो उसका पहला रिएक्शन जो नेचुरली वो चीज़ देखी, उसने वो उस लंबे से आदमी को देखा जो कि फर्नेस के पास में लेटा हुआ था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, वो इतना फर्नेस के क्लोज था कि उसके गीले कपड़ों से, फटे कपड़ों से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ। आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ्स का एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया, ब्लैक स्मिथ्स ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। बट आयरन मास्टर वॉज नॉट लाइक दैट, लेकिन आयरन मास्टर उसकी तरह नहीं था। He wanted to see, वो देखना चाहता था। Who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, वो उसके पास गया, looked him over very carefully, उसे बड़े ध्यान से देखा, then tore off his slouch hat, तब उसके हैट को ऊपर से उठाकर देखा, to get a better view of his face, उसके चेहरे का अच्छा व्यू देखने के लिए। But of course it is you, Nils Olof, he said. How do you look? उसने उसको किसी व्यक्ति के नाम से एड्रेस किया। एंड व्हाट वाज दैट नेम? निल्स ऑलफ। उसने उसको निल्स ऑलफ के रूप में आइडेंटिफाई किया। किसने? आयरन मास्टर ने रेड ट्रैप सेलर को। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन मास्टर ने उस रेड ट्रैप सेलर को निल्स ऑलफ के नाम से पहचाना। बट दिस रेड ट्रैप सेलर, इसने तो कभी उसको देखा भी नहीं था, उसको मालूम भी नहीं था उसका नाम क्या है। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रॉनर। एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान, लेकिन तुरंत उसके दिमाग में एन आइडिया केम टू हिज माइंड। ओके, दिस जेंटलमैन इज थिंकिंग दैट आई एम वन ऑफ हिज नॉन पर्सन, यानी मैं उसकी जान पहचान का हूँ। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर, तो हो सकता है ही माइट गिव मी सम मनी, हो सकता है कि मुझे थोड़ा पैसा दे दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once, इसलिए he did not want to disclose his identity, इसलिए उसने क्या सोचा, अच्छा है अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखो, बताओ ही मत उसको। Yes, God knows things have gone downhill with me, और उसने उसको कंफ्यूज रखा पूरी तरह से, उसका जो कंफ्यूजन है दूर नहीं किया।
हाँ गॉड भगवान जानता है कि चीज़ें मेरे साथ में किस तरह से खराब हो गई हैं. यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. रेजिमेंट मीन्स आर्मी. दैट वॉज द मिस्टेक. इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट वुड नेवर हैव हैपन. यानी अगर मैं सर्विस में होता उस समय तो ऐसा तुम्हारे साथ में कभी नहीं होता. दिस शोज दैट दे हैड नॉट मेट फॉर मैनी टाइम्स, कि वो निल्स ओलफ से कभी बहुत समय से मिला नहीं है. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी. तो उसने उसको घर आने का इनविटेशन दिया. किसको? रेट्रेप सेलर को. किसने? आयरन मास्टर ने. उसको कैसे आइडेंटिफाई किया उसने? आइडेंटिफाई नहीं, मिस आइडेंटिफाई किया, निल्स ओलफ के रूप में. टू गो अलॉन्ग टू अप टू द मैनर हाउस. मैनर हाउस मीन्स रिच लैंडलॉर्ड हाउस. एक मतलब बड़े धनवान पैसे वाले आदमी के घर जाना. बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. कॉमरेड कहते हैं कंपेनियन, एक सेना वाले साथी के रूप में रिसीव किया जाना. दिस डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. ये ट्रैम्प को पसंद नहीं आया. वाई डिड इट नॉट प्लीज हिम? बिकॉज ही थॉट कि अगर वहाँ पर लोगों ने उसे देख लिया तो ही वुड बी अरेस्टेड बाय द पुलिस, और उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी. तो इसलिए उसने सोचा नहीं नहीं, घर नहीं जाना, यहीं पड़े रहने में भलाई है, अगर कुछ पैसे दे जाए तो ठीक है. नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट. नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना. ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. ही थॉट ऑफ द 30 kroner. उसी समय उसे अपने 30 kroners की याद आई. टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लॉयंस डैन. उसे लगा कि अगर ये इसके घर गया तो ये ठीक उस तरह होगा जैसे शेर की गुफा में अपने आप को पुश कर देना. ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्स एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिकसली एज पॉसिबल. वो चाहता था कि केवल उसे यहाँ सोने का मौका मिल जाए और फिर चुपके से यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए. द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of miserable clothing. लेकिन आयरन मास्टर को भी उसका व्यवहार अजीब लगा. बट ही थॉट कि मे बी ही वॉज एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग मीन्स पुअर क्लोथ्स. आयरन मास्टर को लगा कि शायद ये रेट्रेप सेलर है, उसे उसके जो फटे पुराने कपड़े उसके कारण शर्म आ रही होगी, इसलिए वो उसके घर नहीं जाना चाहता. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैनॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड. उसने कहा कि तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास में कोई बहुत बड़ा घर है जिसमें तुम नहीं आ सकते. एलिजाबेथ इज डेड. एलिजाबेथ तो मर चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड. सो एलिजाबेथ मस्ट बी द नेम ऑफ हिज वाइफ. माई बॉयज आर अब्रॉड एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी के अलावा और मेरे अलावा कोई भी नहीं है. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. हम सोच ही रहे थे कि क्रिसमस आने वाला है और हमारे पास में कोई कंपनी नहीं है. कंपनी का मतलब कोई साथी नहीं है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. नाउ कम अलॉन्ग विद मी, सो यू प्लीज कम विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर. कम विद अस एंड सेलिब्रेट द क्रिसमस. आओ हमारे साथ में क्रिसमस मनाओ. बट द स्ट्रेंजर सेड नो. लेकिन रेट्रेप सेलर ने कहा नहीं, और बार बार नो नो नो. एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन. और आयरन मास्टर को लगा ही मस्ट गिव इन मीन्स सरेंडर, कि उसे सरेंडर कर देना चाहिए. इट लुक्स एज दाउ कैप्टन वॉन स्टेहल प्रिफर टू स्टे विद यू टुनाइट ज़ेनस्टॉर्म, ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील. ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेहल आज तुम्हारे साथ में ही रुकना चाहते हैं. ये कैप्टन वॉन स्टेहल उसी को संबोधित किया निल्स ओलफ, हो सकता है उसका निकनेम हो, और ये कैप्टन वॉन स्टेहल भी उसी का नाम है कि कैप्टन वॉन स्टेहल आपके साथ ही रुकना चाहते हैं. और ये जो नाम है ये नाम मास्टर ब्लैकस्मिथ का है. बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ. लेकिन वो अब मन ही मन में हंसा एज ही वेंट अवे, जब वो गया. एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, ब्लैकस्मिथ जो उसे जानता था, वही ब्लैकस्मिथ जो उसके यहाँ काम कर रहा था, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो समझ गया दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी. किसकी? आयरन मास्टर की. इसका मतलब आयरन मास्टर वापस आएगा उसको लेने के लिए, या वो किसी को भेजेगा. दिस we shall be reading in the second part of this particular lesson. So that is the end of the first part. If you have any difficulty in understanding any word or sentences, please drop a comment in the comment box. Thank you.